let us invoke the blessing of the divine and set the stage for a successful and amazing event. Ladies and gentlemen, let's welcome them with a huge round of applause. On such a bright note, let us all strive to join in clapping, please. Huge round of applause. And a memento. And a plant. See? Next we invite C.V. Singh, founder chairman at Aryavrat Sahodaya School. Please give a big round of applause as our principal presents the honor. Next is Dr. D.K. Singh, National President of Bihar Public and Children Welfare Association. Huge round of applause. Next, we have Shalini Sinha, Social Worker and Sangathan Mantri, Akhil Bharatiya Kayastha Mahasabha. Co-convener at Sangat Pangat. Later at Tarumitra. Come near. Like a Padmashri. Thank you, ma'am. Next is S.K. Rajiv, editor News 22. Huge round of
applause, everyone. Next is Deep Shresh. Next, guest of honor is Deep Trace, actor, director, producer of Bhojpuri film industry. Quite a known face. Next guest of honor is Amrinder Singh, a social worker. Huge round of applause, everyone. You know, life is like this annual function stage. Sometimes you are star performer and other times you are just a confused dancer in the corner. But key is to keep going ahead. And on this note, let us give a big round of applause to all the participants today because they have worked hard to bring the stage to life. Now, let's kickstart this evening with a dazzling performance that will light up this stage brighter than Diwali. Put your hands together for opening act, which is Ganesh Vandana by students of grade 7, 8 and 9. Good afternoon, everyone. Hi. My name is Akanksha from class 8. Good morning, everyone. My name is Benja Singh from class 8. Now I am going to introduce you with this program which is Ganesh Vandana. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaresu Sarvada. It is known that Lord Ganesha is the god of beginning. According to Indian tradition, before we begin, we pray to Lord Ganesha that he make this event successful and bless us. We request him to bless us so that we complete our event. Thank you.
गुणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय भोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि performance. It reminds us of boundless potential in each one of us. Life, after all, is about celebrating these moments of joy and creativity. We are honored to have with us a distinguished personality, IPS Vikas Vaibhavji, IG and alumnus of IIT Kanpur. He also served in NIA. As a SPO Patna in 2015, he earned the trust of common people. In March 2021, he initiated Let's Inspire Bihar. May I now humbly request Shri Vikas Vaibhavji to kindly come forward and address the gathering. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming him with a huge round of applause. Thank you. इंटरनेशनल स्कॉलर्स स्कूल के इस एनुअल फंक्शन में यहाँ उपस्थित स्कूल की फाउंडर डॉक्टर मिसेस बी प्रियम, यहाँ उपस्थित डॉक्टर अमूल्या सिंह जी, डीके सिंह साहब, उपस्थित सीवी सिंह साहब, शालिनी जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, पेरेंट्स और प्यारे विद्यार्थियों। डॉक्टर बी प्रियम बहुत लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देती रही हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब इन्होंने केवल एक संस्थान तक स्वयं को सीमित न रखते हुए एक बड़ी दृष्टि के साथ
पटना के बाद अब इस नया गांव में भी एक नए कैंपस की स्थापना हुई और उसको हम लोग आज आगे बढ़ते देख पा रहे हैं। कुछ देर पहले बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चों के द्वारा की गई। सभी लोग जानते हैं बिहार कैसे आगे बढ़े, इसके एक बड़ा अभियान लोगों को जोड़ने का, ऐसे लोगों को जोड़ने का जो बिहार के लिए कुछ अंशदान देना चाहते हैं, पिछले लगभग 4 वर्षों से बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की है तो विद्यालय की, क्योंकि यदि हम 2047 के भारत की बात करते हैं तो जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, जब तक बिहार से एक एक व्यक्ति को हम इस रूप में सक्षम नहीं बना सकेंगे कि शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, तब तक भारत कैसे विकसित हो। तो बिहार का एक बड़ा दायित्व आज बिहार के शिक्षकों पर है, जहां सबसे बड़ी संख्या में वैसे लोग जो आने वाले बिहार का भविष्य गढ़ेंगे आज पढ़ाई कर रहे हैं। जनसंख्या की बात बिहार की यदि की जाए तो 14 करोड़ है और 14 करोड़ में 9 करोड़ ऐसे हैं जिनकी आयु आज 30 वर्ष से कम है। तो सबसे बड़ी संख्या में बिहार की जनसंख्या में आज वैसे हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं जिनकी उम्र 30 से कम है। और यदि हम 2047 की बात कर रहे हैं कि सभी को हम रोजगार दे सकें, तो सोचिए कैसे संभव होगा कि 9 करोड़ लोगों को अगले 2 दशकों में हम बिहार में रोजगार दे सकें। आज यदि सरकारी नौकरियों की हम बात करें, निश्चित रूप सी बात है कि बड़ी संख्या में बिहार के छात्र आज सरकारी नौकरियों के लिए ही प्रयास करते हैं। लेकिन यदि कुछ नया हमने नहीं किया और विद्यार्थी केवल सरकारी नौकरी तक सीमित होकर सोचते रहे, तो किसी भी दल की सरकार आएगी तो शायद 1% से कुछ अधिक लोगों को ही सरकारी नौकरी से लाभान्वित हम कर सकते हैं। आवश्यकता क्या है? जब शिक्षा पद्धति की हम लोग बात करते हैं तो याद करते हैं लॉर्ड मैकॉले को, जिन्होंने 1835 में भारत की नई शिक्षा नीति का निर्माण किया था, जिसमें कहा गया था टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंटरप्रेटर्स बिटवीन दोज हु आर रूलिंग एंड द मिलियंस हु आर रूल्ड, हु वुड बी इंडियन इन अपीयरेंस बट ब्रिटिश इन थॉट्स एंड मैनर्स। उस प्रकार की सोच के साथ भारत की नई शिक्षा नीति 1835 में आई थी और उसने एक नई क्लास को जनरेट किया जो न केवल इंटरप्रेटर थी, इट ऑल्सो बिकेम इमिटेटर, कि हम अपने नए सृजन की क्षमता को भूलते चले गए। भारत का इतिहास बहुत गौरवान्वित करता है और अपने इतिहास को हमने बहुत अच्छे से समझा भी नहीं है। अभी भी यदि हम बात करें, एक बड़ी जनसंख्या में अगर 1 लाख लोगों को भी लेते हैं, उनमें से पूछें कि कितने लोगों ने अपने वेदों को पढ़ा होगा, तो शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो उसमें पढ़ा होगा। कितने लोग होंगे जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी? बहुत कम लोग होंगे। और बिहार की बात कर लेंगे तो बहुत कम लोग होंगे जो वास्तव में जानते होंगे। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो में देख रहा था जिसमें रामायण के ऊपर एक नई इंटरप्रिटेशंस की बात हो रही थी कि हम क्या जानते थे। जैसे विश्व में सब लोग जानते हैं अमेरिका की खोज करीब 500 वर्ष पहले हुई, किस प्रकार से हुई, क्या संस्कृति थी, कैसे उसको नष्ट किया गया। लेकिन रामायण में जब सीता हरण के बाद सुग्रीव पूरे विश्व के अलग अलग कोनों की बात करते हैं तो उसमें जो विवरण मिलते हैं उसमें नॉर्थ पोल की भी बात हो रही है, उसमें दक्षिण अमेरिका के पेरू के स्थित एक पर्वत की भी बात हो रही है जिस पर एक ऐसा निशान है जो त्रिशूल की तरह है और उस निशान को आज भी हम देख सकते हैं, जिसकी संभावना कब बना होगा किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन रामायण में उसका वर्णन मिलता है। तो कुछ ऐसे डॉट्स हैं जो हमारी सभ्यता में,
जिनको हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। और आज आवश्यकता यदि बिहार की करें तो क्या है कि बड़ी संख्या में अपने यूथ को हम उद्यमिता की ओर ले जा सकें। वी मेक देम एंटरप्रेन्योर्स जो नए उद्योग लगा सकते हो, नए स्टार्टअप्स लगा सकते हो। बिहार को आवश्यकता है। केवल सरकारी नौकरी के लिए यदि हम सोचेंगे तो केवल 1% को ही हम नौकरी दे सकेंगे, और इतनी बड़ी संख्या में यदि करना है तो स्थापना उसकी विद्यालय काल से ही होगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी कुछ महीनों पहले डॉक्टर सीबी सिंह नॉलेज ग्राम से मिलने का अवसर मिला था उनके स्कूल में। तो उन्होंने बताया कि हर बच्चे को कैसे बाल्यकाल से क्या बनना चाहता है उससे पूछते हैं, उसके हिसाब से उसकी एक ग्रूमिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसी प्रकार से तो हमें भी एक एक बालक जो हमारे, एक एक बालिका हमारे जो विद्यालय में है, उसकी क्षमता को समझना होगा। क्षमता तो असीम है, लेकिन उसकी रुचि किन क्षेत्रों में है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बनना चाहिए, लेकिन बच्चे की रुचि कुछ और होती है। तो बच्चे की जो मौलिक रुचि है उसको समझते हुए कैसे उसको हम आगे बढ़ा सकें, क्योंकि बिहार को आवश्यकता है कि हमारे बच्चे केवल वैसे नहीं बने जैसा उनको हम बनाना चाहते हैं। वी नीड पीपल हु कैन इनोवेट, हु कैन क्रिएट, हु कैन थिंक एंड हु कैन क्रिएट समथिंग न्यू। तो तभी इतनी बड़ी संख्या में हम जॉब क्रिएटर्स बना सकेंगे। और जॉब क्रिएटर्स केवल अगर हम सोचेंगे कि उन्हीं क्षेत्रों में बनेंगे जैसा हम सोचते हैं, तो हमारी अपनी जो विजन है, हमारी अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से आज एक जगह जाकर स्थापित हो गई। लेकिन जो बच्चे हैं तो पूरी नई क्षमता को लेकर आए हैं। मुझे याद आता है वेदांत की बात, वेदांत की ही बात हमेशा करता हूं, इसलिए करता हूं कि वेदांत ने उस बिहार को ऐसी सोच दी जिसमें जातियां थीं लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था। अगर ऐसा जातिवाद रहा होता जैसा आज हम संघर्ष करते हैं तो मगध में कभी नंद वंश का उदय तो होता ही नहीं। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक इसलिए बने क्योंकि बिहार के पूर्वजों की सोच बड़ी थी। अगर ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते। और जिस क्षेत्र में हम लोग आज इस कार्यक्रम में हैं, उस प्राचीन वैशाली की तो स्थापना संभव ही नहीं थी, जिसमें 7,707 गणराजा चुने जाते थे। जाति के आधार पर नहीं, लोग अपने अपने क्षेत्रों से चुनकर भेजते थे और बिना विवाद के वैशाली के संथागार में अपने गणाधिपति का चयन करते थे। सोच कैसे आई? वेदांत की एक बात जो विद्यालय के परिवेश में, उस कथा को मैं हमेशा याद करता हूं। जब गुरु और शिष्य दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारी दृष्टि विकसित करना चाहता हूं। तो शिष्य ने कहा, किस प्रकार से मेरी दृष्टि को विकसित करेंगे? मुझमें क्या कमी, मैं सब कुछ देख पाता हूं। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो तुम देख पाते हो, लेकिन ये नहीं देख पाते हो कि जहां कुछ नहीं दिखता वहां भी सब कुछ विद्यमान है। तो शिष्य ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां कुछ नहीं है वहां सब कुछ है? तो गुरु ने कहा, जहां शून्य तुम्हें प्रतीत हो रहा है वहां भी पूर्ण है। तो शिष्य बड़ा अचंभित हुआ, उसने कहा, कैसे संभव हो सकता है? तो गुरु ने कहा, ऊपर देखो क्या दिखता है। तो शिष्य ने ऊपर ध्यान से देखा, उसने कहा, ऊपर हम लोग एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उसके ऊपर आसमान है, कुछ पक्षियां उड़ रही हैं, अलग अलग प्रकार का उसने विवरण दिया। तो गुरु ने कहा, इस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ और तब बताओ क्या दिखता है। तो शिष्य ने वैसा ही किया, उसने कहा, यहाँ कुछ टहनियां हैं जिसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, कुछ फल हैं, पक्षियों के घोंसले हैं। तो गुरु ने कहा, एक फल को तोड़कर नीचे आ जाओ। और तब गुरु ने कहा, इस फल को देखो और इसको खंडित करो और तब बताओ अब तुम्हें क्या दिखता है। तो शिष्य ने कहा, अब इस फल को जब खंडित करता हूं तो इसके अंदर फल का गूदा दिखता है, कुछ बीज दिखते हैं। तो गुरु ने कहा, अब इस बीज को निकालो और इस बीज को खंडित करके अब बताओ तुम्हें क्या दिखता है। तो शिष्य ने जब उस बीज को देखा तो शिष्य ने कहा, अब तो इसके अंदर कुछ वैसा नहीं दिखता है जिसको बताया जा सके, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तब गुरु ने कहा, जिस बीज में तुम्हें कुछ नहीं दिखता है उसी को जब बोते हो तो पूरा वृक्ष तो उसी में समाया हुआ है जो तुम्हें दिखता नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे विद्यार्थी हैं जिनकी क्षमता असीम है, हम जब देखते हैं हम सोचते हैं कि बच्चे हैं, कैसे कर सकेंगे,
कुछ नया करने का प्रयास करते हैं तो हमको लगता है कर नहीं पाएंगे, बड़ी कठिनाई होगी, तब हम उनको अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं। उसकी मौलिक अनुभूति जिसमें क्षमता है कुछ नया करने की, उसको हम समझ नहीं पाते। और इसी दृष्टि के विकास की आवश्यकता है हर पेरेंट में भी, हर टीचर में भी, क्योंकि हमारे हर बच्चे की पोटेंशियल, उसकी क्वालिटी अलग है, उसको बहुत कुछ करने की क्षमता है, लेकिन यदि हम उसको समझेंगे नहीं, उसके अनुसार उसको ग्रूम नहीं करेंगे, तो आने वाले भारत में अगेन वी विल क्रिएट द सेम क्लास ऑफ पीपल हु वुड इमिटेट, और जो मकौले का विजन था, who would become interpreters, they will not create new, but हमें क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ नया कर सके, तभी हमारी समस्याओं का निराकरण संभव है। और इसीलिए इस पूरे अभियान में उस प्राचीन जब वेदांत की बात करते हैं, दृष्टि बहुत बड़ी थी, छोटी नहीं थी। यदि उस पूरे ट्रांजिशन को पढ़ेंगे तो पाएंगे जब वेद से वेदांत तक आते हैं तो वेदों में प्रश्न है जिसमें अपनी अस्तित्व के बारे में पूछते हैं, वेदांत में उत्तर है जिसमें ऋषि कहता है तत्त्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं, जो पूरी सृष्टि के उस शक्ति के स्रोत को अपने अंदर अनुभव करता है। ये सिर्फ दृष्टि कहीं और की नहीं थी, अपने बिहार की थी। यही कारण था कि जिस व्यक्ति में भाव आ गया कि मुझमें भी ईश्वर का अंश है, इनमें भी ईश्वर का अंश है, तो ऐसा व्यक्ति कभी जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, विचारधाराओं के मतभेद के आधार पर दूसरे व्यक्ति से कभी संघर्ष नहीं कर सकता। उसे तो सर्वत्र वही दिखता है। और ऐसी बड़ी दृष्टि के साथ जब हम सोचते हैं तो हम कुछ बड़ा करते हैं। और यही कारण था कि बिहार ने इतिहास में, जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी, ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। ऐसे आचार्यों का निर्माण कर दिया कि पूरे तिब्बत के लोगों को सोना एकत्रित करना पड़ गया था केवल एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए। कहानियां बहुत हैं लेकिन अतीत की हैं, बात हम कर रहे हैं भविष्य की, और उसकी जो नींव है हमारे विद्यालय से ही बनती है। तो बड़ा प्रसन्न हूं आज इस अवसर पर, डॉक्टर बी प्रियम जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। इस विद्यालय के लिए कुछ समय पूर्व ही इसकी स्थापना हुई, आज करीब 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन निश्चित ही जब उसी प्रेरणा के साथ जैसे पटना के स्कॉलर्स अवार्ड में पढ़ाई करते थे, यहाँ भी इस क्षेत्र में एक नई ज्योति का प्रसार होगा। और आज बिहार के हर गांव में आवश्यकता है अच्छे विद्यालयों की, जो बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थियों को शिक्षित कर सके और स्किल्ड कर सके, तभी तो 9 करोड़ लोगों को हम बिहार में रोजगार दे सकेंगे। तो इस अवसर पर मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इच्छा प्रभु से प्रार्थना यही है कि विद्यालय आगे बढ़े और इस क्षेत्र में अनेक ऐसी प्रतिभाओं का निर्माण करे, उनको स्थापित करे, जिन पर आने वाले समय में अपना बिहार, अपना भारत गौरवान्वित हो। धन्यवाद। Vaibhav ji, for your inspiring, thought-provoking words. Your speech has truly enlightened us and left a lasting impression on all of us. You showed how knowledgeable and how insightful you are, knowing the history, present, scenario and everything about the Bihar and how it had played a crucial role in ancient time and how futuristic and visionary you are. And your mission of inspiring Bihar is a successful one, as there are 150,000 volunteers, and in the future it will be a very, very successful one. We are very happy and honored as a Bihari that you are really thinking about our future, and the main problem here is migration, and you are trying to handle that as well. So thank you so much, sir. So everyone, please give a huge round of applause to IPS Vikas Vaibhav ji. Thank you for your presence, sir. Now the stage is set and the excitement is palpable. Let us dive into the performance that our students have worked so hard to prepare. Each act today tells a unique story of talent, creativity and dedication. We present a wonderful welcome dance that represents the spirit of unity and celebration. Sit back, relax and let the rhythm of joy sweep you away. Welcome dance by students of class 1st, 2nd and 3rd. Among us from a
stand up to the welcome dance is an energetic and vibrant performance. It symbolizes joy, unity and warm greetings to all the esteemed guests, parents, teachers and students. Thank you. Good afternoon everyone, I am Priyansh. The welcome dance not only entertains but also serves as an artistic expression of respect and hospitality, leaving the audience inspired and ready to enjoy today's events. Thank you. That was fantabulous. But before we move on to next program, I would like to invite our honorable guest of honor, S.K. Rajiv. He is known for his commitment to media and development. He has been a voice for people, tirelessly addressing their concern and striving for progress in every sphere. So please, may I now humbly request Shri S.K. Rajiv, editor News 22, to please welcome him with a huge round of applause. चलिए मैम, थैंक यू। सबसे पहले इस विलक्षण समारोह में हेतु यानी कि जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है, इंटरनेशनल स्कूल
को मेरा सादर प्रणाम है। और बी प्रिया जी के विषय में मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि बी प्रिया जी जननी है और जननी हमेशा निर्माण करती है, जननी हमेशा निर्माण करने के लिए जानी जाती है। और वैभव साहब के विषय में बड़ी अच्छी एक पंक्ति है कि जो पहुंच गए हैं मंजिल पे उनको तो नहीं है नाजे सफर, जो पहुंच गए हैं मंजिल पे उनको तो नहीं है नाजे सफर, दो कदम अभी जो चले नहीं रफ्तार की बातें करते हैं। तो आज अच्छा बी प्रियम सॉरी, तो वैभव साहब को पूरा देश, सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के लिए तो ये बहुत ही गौरव की बात है कि आज वैभव साहब जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि पूरा देश जो है वो विकास वैभव साहब को जानता है, और वो आईपीएस कम जानता है, वो इनके व्यक्तित्व के विषय में जानता है। तो दरअसल में इस विद्यालय में ये कार्यक्रम किया गया है, तो बच्चों के विषय में कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। तो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर देव का अंश होता है, प्रभु का अंश होता है, और बच्चों का निर्माण किया जाता है कि आप उसको किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बी प्रियम जी हैं, और चूंकि ये इंटरनेशनल स्कूल है, स्कॉलर स्कूल है, और आपको याद होगा अगर आप पढ़ते भी होंगे तो पहले गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी। और गुरु वशिष्ठ को अगर आप जानते होंगे तो राम के वो गुरु थे, दशरथ के भी वो गुरु थे, और उन्होंने ही राम को शिक्षा दीक्षा दी थी। और राम के विषय में यह कहा जाता है, देखिए ये हिंदुस्तान जो है वो प्रेरणा का स्रोत रहा है पूरी दुनिया के लिए। हिंदुस्तान यह बताता है, और खास करके सनातन की संस्कृति यह बताती है कि त्रिलोकी का राज साम्राज्य जो अयोध्या था, मतलब इंद्र भी देख करके अयोध्या को सिहाते थे, और उस साम्राज्य को एक सेकंड में प्रभु श्री राम ने छोड़ दिया। तो ये त्याग समर्पण का प्रतीक जो है ये हिंदुस्तान है। और बिहार के विषय में तो कहा जाता है, अभी कुछ दिन पहले मेरी चर्चा हो रही थी, चूंकि टीवी का पत्रकार हूं, 20 साल से पटना में पत्रकारिता कर रहा हूं, तो अभी मेरी एक लीडर के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई बिहार जो है वो राजनीतिज्ञों को जन्म देता है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, बिहार जो है वो बौद्धिकता की धरती है, और यही वजह है कि गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार में हुई थी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि मैं मैडम से अनुरोध करना चाहूंगा कि मैडम निश्चित तौर पर इंटरनेशनल स्कॉलर स्कूल है, आप अंग्रेजी पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन साथ ही साथ सनातन की भी शिक्षा उनको दीजिए, क्योंकि वो गौरवान्वित महसूस करेंगे कि वो एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अभी बता रहे थे वैभव साहब कि लोकतंत्र की जननी है वैशाली बगल में, लेकिन मैं एक और आपको बताना चाहूंगा कि ये कहा जाता है कि लोकतंत्र को परिभाषित बिहार करता है, वैशाली करता है, लेकिन आज से 7000 साल पहले अगर हम चले हैं, पीछे चले हैं, सनातन की संस्कृति को देखें, तो उस समय श्री राम ने लोकतंत्र को परिभाषित किया। जब भरत जा रहे थे अपने भाई को मनाने के लिए, ऋषि भारद्वाज तमाम लोग थे, गुरु वशिष्ठ सब लोग थे, पूरी अयोध्या नगरी थी साथ में, और जब वो लोग गए प्रभु राम के पास तो उन्होंने उस समय जनमत का सम्मान नहीं किया, उन्होंने बताया, हालांकि अयोध्या जो है वो लोकतंत्र, वहां पर कहा जाता है कि वहां पर राम वही करते थे जो जनता कहती थी, तो उन्होंने उस समय जनमत, आप अंदाजा लगाइए, रामायण में भी इस बात को कहा गया है कि जब पूरी जनमत वहां पर मौजूद थी, पूरी अयोध्या के लोग मौजूद थे, और उन्होंने कहा प्रभु श्री राम को कि वापस आप लौट जाइए, तो उन्होंने जनमत का सम्मान नहीं किया, उन्होंने नीति का सम्मान किया। तो यह देश जो है वो सनातनियों का देश है। और रही बात शिक्षा की, तो मैं तो आप तमाम जो यहाँ गार्जियन बैठे हुए हैं, जो बच्चे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपने दिमाग से यह निकाल दीजिए कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। मैं दिल्ली में पढ़ा लिखा जेएनयू का छात्र हूँ, यूपीएससी की तैयारी मैं भी कर रहा था, 7 नंबर से 98 में एलाइड मिस किया मैं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये चीज आया कि भाई हिंदुस्तान कितने आईएएस आईपीएस को जो है वो बनाएगा। आप सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, और स्वामी विवेकानंद से आप प्रेरित होइए, जो कोई आईएएस आईपीएस नहीं थे, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, कोई राजनेता नहीं थे, लेकिन आज पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद को नमन करता है। तो अपने व्यक्तित्व का विकास निश्चित तौर पर कीजिए। और रही बात शिक्षा की, तो कहा जाता है कि शिक्षा जो है वो संस्कार की जननी है, और संस्कार हमारी संस्कृति का विकास करता है। चूंकि समय की कमी है, मुझे जाना है, एक जगह प्रोग्राम है हम लोगों का, एक गांव से आज हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, गांव से गणतंत्र। लेकिन चलते चलते मैडम के लिए एक शब्द कहना चाहूंगा
कि मैडम जब भी शिक्षा के जगत में कहीं भी देना होगा उदाहरण तो सबसे पहले मैं दे दूंगा आपका उदाहरण। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। Where he talked about Sanatan Dharma and how it has led to change in our education system and what values we can take from there and implement and which is still relatable in today's time. So now get ready to groove and move as we take you on an exciting journey full of energy, rhythm and vibrant beat. Stage is about to come alive with an electrifying performance that will make you tap your feet and clap your hands. Presenting to you the Waka Waka dance. So just relax and let the music take over as our talented performers of kindergarten light up the stage. Let's give them a big round of applause as they bring us the magic of Waka Waka. Music is universal language and today it's speaking Waka Waka. Waka Waka is a term often associated with lively rhythmic sounds and playful energy. Thank you. Good afternoon everyone. My name is Sani. Welcome to the world of Waka Waka, where the energy never stops. It represents spontaneity, fun and light-hearted approach to life. Thank you. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, waka, waka, eh, Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my Sangin' sister, my zimu, yeah. This is Africa. Samina, mina, anawa, ah, Samina, mina, Samina, mina, anawa, ah, Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah.
chief guest, Ramanuj Prasad Yadav, MLA Sonpur, has arrived. So please, I would request you to come on the stage. Huge round of applause, everyone. I cannot hear the claps. Louder. आज विश्वविद्यालय इंटरनेशनल स्कॉलर स्कूल के इस प्रांगण में इस विशेष कार्यक्रम में मुझको शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए आमंत्रण जो संस्थान के लोगों के कर्ता धर्ता के द्वारा मिला, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा आने में मुझे विलम्ब हुआ है, तो ये मेरे घर में ही, लेकिन आज शनिवार रविवार को मैं क्षेत्र के लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है उसके लिए शनिवार रविवार को बैठ के दिन भर लोगों से मिला करता हूँ। इसमें लोग बाग मिलने वाले थे, हमारे जनता जनार्दन, इसमें विलम्ब हुआ आने में, इसके लिए भी मैं क्षमा पाती हूँ कि जो लोग हैं उनको लगा होगा कि भाई समय कब का था, आ कब रहे हैं। और साथ साथ मैं ये कि नए वर्ष की शुभकामना यहाँ जितने लोग हैं, हमारे इसे सोनपुर के क्षेत्र की जो महान जनता, इस विद्यालय के संस्थापक, विद्यालय परिवार के सभी जो यहाँ शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे, जो भी हमारे जो गेस्ट हैं हमारे यहाँ आए हैं, उन सबको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने गृह क्षेत्र में मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। और स्कूल परिवार को मैं इसके लिए ये करता हूँ और शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि ये विद्यालय चले, बढ़े, बेहतर करे। हमारे लोगों को जो जीवन का परम लक्ष्य है शिक्षा, दुनिया की सारी जो व्यवस्था का संचालन होता है उसमें शिक्षा की अहम भूमिका है। आज विश्व जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एरा कहा जा रहा है, ज्ञान पर आधारित अर्थशास्त्र का युग है। इसमें हमारा समाज, हमारे लोग पढ़ेंगे, बढ़ेंगे आपके सौजन्य से, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि हाँ साहब। लेकिन एक सुझाव रहेगा कि साहब निश्चित तौर पे जो लोग भी विद्यालय आज प्राइवेट सेक्टर के जो भी स्कूल्स, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी चल रहे हैं, तो बिजनेस तो आपका मोटिव है ही, लेकिन वेलफेयर भी हो तो ज़्यादा ये होगा और आपकी भी तरक्की होगी, राज राष्ट्र को, समाज को। और हम तो हमारे यहाँ आपने शुरू किया है, मेरी ओर से जो भी आप अपेक्षा रखती हैं या रखते हैं, जो करता धरता लोग, उन लोगों को मैं अपनी ओर से सहयोग का ये करूँगा। लेकिन साथ साथ इस आशा और विश्वास के साथ कि ये विद्यालय हमारे यहाँ कार्य करे, हमारे लोगों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का, ये तो निश्चित तौर पे आपका जो होगा उससे आपका भी परिणाम से आपका भी भविष्य जुड़ा हुआ रहेगा कि जितना बेहतर परफॉर्मेंस होगा, आपके जितने बेहतर ये होंगे कार्य करने का जो और संचालन का जो ये तौर तरीका, वो आपके इस स्कूल के बढ़ने में, जमने में सहायक होगा। लेकिन अगर बेहतर ढंग से होगा तो हमारे क्षेत्र के लोग को लाभ पहुंचेगा। और इसी में कि साहब आज जो दौर है, एक अजीब परिस्थिति से हम सब लोग गुजर रहे हैं। हम लोग तो सरकारी विद्यालय से ही पढ़े, मैं कई बार से एमएलए हो रहा हूँ, इस क्षेत्र की जनता मुझको बना रही है, जिम्मेवारी दे रही है, और यही हमारा भी एजेंडा है। या सदन में जब भी मैं खड़ा होता हूँ,
खास करके शिक्षा जैसे विषय पर बोलने के लिए, तो हमेशा याद ये हम लोग को रहता है या सरकार के ध्यान आकृष्ट करते हैं कि साहब ऐसा क्या कुछ हो गया कि हमारे जो सरकारी विद्यालय में जो लोग लगे हैं कार्य में, वो भी अपने बच्चों को आज उसमें नहीं पढ़ाते। जो शिक्षक उसमें कार्य कर रहे हैं, जो कर्मचारी उसमें लगे हैं, उससे तनख्वाह लेकर के अपने परिवार को चला रहे हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर्स के जो स्कूल्स कॉलेज हैं उस पर ज़्यादा रियलाई कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा आप लोगों पर भरोसा है। तो ये इसको आप इसका ध्यान रखेंगे जो विद्यालय परिवार के लोग हैं कि साहब आपका इतना बेहतर प्रदर्शन हो, लोगों के साथ आपका इतना बेहतर व्यवहार हो कि आपका तो संस्थान बढ़े और फले फूले, लेकिन साथ साथ हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे जो बच्चे, हमारे जो पाल्य आपके यहाँ आए हमारे वर्ष, उनको आप बेहतर शिक्षा और जो दुनिया का जो दौर है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, उसके में जो लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर ज़्यादा आकृष्ट हो चुके हैं, हो नहीं रहे, हो चुके हैं, उसमें आप बेहतर ढंग से परफॉर्म करने का आप सभी विद्यालय परिवार के लोग प्रयास करेंगे, तो हम सब लोग का भी सहयोग जो अपेक्षित है वो करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः एक बार शुभकामना व्यक्त करते हुए और मुझको यहाँ आने का आपने जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। We are deeply grateful for your presence here today and taking the time to share your valuable thought with us. It has indeed been an honor to have you among us. Let us once again express our heartfelt gratitude to Shri Ramanuj Prasad Yadav ji with a big round of applause. Huge round of applause, everyone. We sincerely thank you for sharing your perspective on education. Your words highlight the importance of nurturing minds and creating opportunities for learning. It's conversations like these that inspire meaningful change and remind us of power of education in bringing a better tomorrow. The next performance is a Mahabharata dance performance. That is a mesmerizing blend of art, storytelling and tradition. Through graceful movement and expressive gesture, it brings to life the epic tales of courage, devotion and dharma. Each reflects the timeless values and lessons of Mahabharata, captivating the audience with its emotional depth and cultural riches. This dance is not just a performance, but a spiritual journey into one of India's greatest epic. Please welcome them on stage, the students of class 4th and 5th, to perform on Mahabharata dance. Good afternoon everyone. Standing at the crossroad of duty and desire, love and sacrifice, the Mahabharata teaches us that life is a battlefield. With our every decision we shape our destiny. I hope our next performance beautifully captures the spirit of Mahabharata. Thank you. Good afternoon everyone. The Mahabharata reminds us that every challenge we face is an opportunity to discover our true selves. Just as Pandavas and Kauravas grappled with destinies, we too must navigate our battle with courage and wisdom. Let us witness how dance transforms this timeless lesson into a visual symphony. Thank you everyone. मैं राधा का गुमान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ। मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में हूँ। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ,
मैं कृष्ण। माधव, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? पार्थ, जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है, तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। उसकी परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती। अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। आइए हम सब मिलकर समाज व अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर कार्य करें और अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करें। यही भागवत गीता का सार है।